નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બંગાળ હવે પછીના ચૂંટણી મહાસંગ્રામનું કુરુક્ષેત્ર બનવા તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. એક બાજુ ફાયર બ્રાન્ડ મમતા બેનર્જી અને તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છે, બીજી બાજુ અત્યંત આક્રમક મોડમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી મેદાનમાં છે. એક જમાનામાં બંગાળમાં ડાબેરીઓની તૂતી વાગતી હતી. જ્યોતિ બસુ, સોમનાથ ચેટર્જી, બુદ્ધદેવ ભટ્ટાચાર્ય જેવા અનેક દિગ્ગજ નેતાઓ ડાબેરીઓ પાસે હતા. પ્રજા ઉપર અને રાજ્ય વ્યવસ્થા ઉપર એમની જડબે સલાક પકડ હતી. એ પહેલા કોંગ્રેસનું શાસન પણ સારું એવું લાંબુ ચાલ્યું. ડોક્ટર બીસી રોય જેવા મુખ્યમંત્રીથી માંડીને પ્રણવદા જેવા નેતાઓ કોંગ્રેસે બંગાળમાંથી આપ્યા. આ બધાને કાળ નડી ગયો. એવી તો પછડાટ ખાધી કે ઊંધામાં એ પછડાઈને ભોય ભેગા થઈ ગયા. મમતા બેનર્જીની તૃણમૂલ કોંગ્રેસનો ઉદય થયો. લડાયક મિજાજ અને જરૂર પડે ત્યાં મસલ પાવર તૃણમૂલની ઓળખાણ બની. આગ ઓગતી ભાષામાં મમતા બેનર્જીના ભાષણો બંગાળના મતદાતાઓને પ્રેરી ગયા. તે સમયે દૂર દૂર સુધી ક્યાંય ભારતીય જનતા પાર્ટીનું નામો નિશાન દેખાતું ન હતું. આજે ભારતીય જનતા પાર્ટી પાસે દરેક જિલ્લામાં હજારો કાર્યકરોની ફોજ છે. બંગાળનો મિજાજ બદલાયેલો લાગે છે. હવામાં કંઈક જુદી જ ભનક છે. બંગાળમાં ઉચ્ચ અધિકારીઓ, વેપારીઓ, ઉદ્યોગપતિઓ, ઠાકુર પરિવારો અને માલેતુજાર તૃણમૂલની નીતિઓથી અને તેમાંય ખાસ કરીને એના મસલ પાવરથી નારાજ છે. બાંગ્લાદેશીઓની ઘૂસણખોરીનો પક્ષ તાણવાની ભારે કિંમત મમતા બેનર્જીએ ચૂકવવી પડે એવી સ્થિતિ આજે દેખાઈ રહી છે. ભાજપનો રાષ્ટ્રવાદ અને આક્રમક હિન્દુત્વનો રાગ બંગાળીઓને કદાચ રવિન્દ્ર સંગીત કરતા પણ વધારે પ્રિય લાગવા માંડ્યો છે. મમતાના ગઢમાંથી કાંકરીઓ ખરવા માંડી છે. કહેવાય છે કે ગઢ તૂટે તે પહેલા કાંગરા ખરી પડતા હોય છે. મમતાના કેટલાક જૂના સાથીઓ એને છોડીને ગયા છે, પણ એથી વધારે તો કદાચ હજુ છેલ્લી ઘડીએ મમતાને છેલ્લો ધક્કો મારીને સરકી જાય એવા સાથીઓની સંખ્યા મોટી હોય તો નવાઈ પામવા જેવું નહીં હોય. મમતાને દૂર કરીને રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાની વાત પણ હવામાં ગુંજી રહી છે. ભારતીય જનતા પક્ષે પોતાના પ્રમુખ જગત પ્રસાદ નડ્ડાથી માંડી ગૃહમંત્રી અમિત શાહ સમેત નેતાઓને ક્યારનાય કામે લગાડી દીધા છે. નરેન્દ્ર મોદી તો હજુ મેદાનમાં ઉતર્યા જ નથી એમ કહીએ તો ચાલે. ભારતીય જનતા પક્ષ આ વખતે હલ્લા બોલ કરીને મમતાના ગઢને ધ્વસ્ત કરવા એડી ચોટીનું જોર લગાવશે એમાં કોઈ શંકા નથી. સામે પક્ષે મરતા ક્યાં ન કરતાની નીતિ અપનાવી મમતા પણ પોતાની બધી તાકાત લગાવી દેશે એ પણ એટલું જ નિશ્ચિત છે. કોંગ્રેસ કે ડાબેરીઓની બહુ ઉપજ હવે બંગાળમાં હોય એવો સમય નથી રહ્યો. પણ ઓવેસી નામનું બીજું એક પાત્ર ઉમેરાયું છે. એ વોટ કટવા છે કે પોતાને માટે લડે છે એના ઉપર પણ મમતાની હાર જીતનો દારોમદાર રહે તેવી શક્યતા રહેલી છે. આ વખતની બંગાળની ચૂંટણી ખાંડાના ખેલ હશે એવું કહેવાય છે. લોકશાહીના બધા જ મૂલ્યોની એસી તૈસી કરનાર લોહિયાળ જંગ મંડાય તે માટેનો દારૂગોળો ખડકાવા માંડ્યો છે. સવાલ છે એને જામગરી કોણ અને ક્યારે ચાંપશે. સવાલ છે એ દારૂગોળો સૌથી વધારે કોને દજાડશે અને કોને જીતાડશે. સવાલ છે બંગાળમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન નાખવું ભારતીય જનતા પાર્ટી માટે ડાપણ ભર્યું રહેશે કે કેમ. સવાલ છે જો એ રાષ્ટ્રપતિ શાસન નખાય તો સરવાળે એ મમતા બેનર્જી માટે સહાનુભૂતિ ઊભી કરવા માટેનું કારણ બની શકે છે ખરું. સવાલ છે બંગાળનું આ વખતનું ચૂંટણી મહાયુદ્ધ કયા મુદ્દા ઉપર લડાશે અને એનો અંજામ શું આવશે. સવાલ છે બંગાળની પ્રજા પણ બાંગ્લાદેશીઓની ઘૂસણખોરી, હિન્દુત્વની ભારતીય જનતા પક્ષે ઊભી કરેલી નવી વ્યાખ્યા અને મમતા બેનર્જી માટે એન્ટી ઇન્કમ્બન્સી વોટ આ બધું કેટલા અંશે કોની તરફેણમાં અથવા કોની વિરુદ્ધમાં જશે. બંગાળના ચૂંટણી મહાસંગ્રામ ઉપર ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝન પર આ પહેલી ચર્ચા છે. કદાચ ગુજરાતના ટેલિવિઝન માધ્યમોમાં પણ. નાટકની ભાષામાં જેને કર્ટન રેઝર કહેવાય એટલે કે પડદો ઊંચકવાની પ્રક્રિયા છે
પડદો ઉંચકવાની શરૂઆત આજની ચર્ચા કરશે. ત્યાર પછી નાટ્યમંચ પર આવતા વિવિધ પાત્રો અને ઘટનાઓની મુલાકાત લેતા રહીશું. અને છેલ્લે બંગાળની પ્રજા અને લોકશાહીના મૂલ્યો બંને કેટલા રક્તરંજિત થશે અને આ અને બીજા પ્રશ્નોની ચર્ચાથી આજે ગુજરાત સમાચાર ટેલિવિઝનના દર્શકો માટે શરૂ કરીશું બંગાળના ચૂંટણી મહાસંગ્રામના લેખાજોખા, એટલે કે બંગાળની બબાલ. આ વિષય પર આપણી સાથે વાત કરવા માટે એક વિદ્વાન પેનલ હાજર છે, જેમાં શ્રીમાન ગૌતમ લહેરી સિનિયર પત્રકાર છે, પ્રેસ ક્લબ ઓફ ઇન્ડિયાના પ્રેસિડેન્ટ રહી ચૂક્યા છે, બંગાળના રાજકારણને ખૂબ જ नजदीक जाने से. लहरी साहब, आप पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुजरात समाचार की ओर से और मेरी अंगत हैसियत से मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं. डॉक्टर हरि देसाई गुजरात समाचारना दर्शक मित्रों माटे अथवा गुजरातीओ माटे हरि देसाईनी ओळखाण आपवी पड़े ए बिल्कुल अप्रस्तुत अने बिनजरूरी है. एटले हरिभाई आपड़ा एक सीनियर पत्रकार है, एक एवी पत्रकारित्वनी संस्थाना डिरेक्टर है कि ज्यां छोकराओ पत्रकारित्व भणीने यूनिवर्सिटी में 10 नंबर पोताना नामे करे छे अने आधुनिक भारतना सोशियल पॉलिटिकल हिस्ट्रीना जाणकार अने राजकारणनी नाड़ पार करनार हरिभाई कांईक अंशे आखा बोला छे, पण ए तो उत्तर गुजरातनी प्रकृति है. दिनेश जी वोरा आर्थिक और राजकीय समीक्षक हैं. आप इंडियन रेवेन्यू सर्विस में काम कर चुके हैं और हम हिंदुस्तानी के माध्यम से देश की विविध समस्याओं को उजागर करने के लिए अपनी बात बिल्कुल नियमित स्वरूप से सटीक रूप में रखते रहते हैं. लहरी साहब, आज शुरुआत करना चाहूंगा आपसे, क्योंकि आप जितना ये पूरे मसले को नजदीक से देखते हैं, जानते हैं, शायद ही हमारे पास ऐसा कोई एक्सपर्ट हो जो उतने अधिकारपूर्वक और काबिलियत से ये बात को असली परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने रख सके, हमारे प्रेक्षकों के सामने रख सके. आज बंगाल का अब मैं मानता हूं कि स्टॉर्म इज बिल्डिंग अप. लो प्रेशर जोन पहले डेवलप हुआ, फिर स्टॉर्म भी बना, अब स्टॉर्म आगे बढ़ रहा है. तो क्या परिस्थिति है बंगाल की, आप क्या मानते हैं? क्या ममता दीदी का जो बंगाल में करिश्मा था वो खत्म होने की कगार पे आके खड़ा है? क्या बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो राइट विंग पॉलिटिक्स है, हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व जिसको बोलो, उस तरह की नीतियां है, सीए के संबंध में जो बातें कही गई है, क्या वो सबका असर बंगाल की प्रजा पे है? बंगाल की प्रजा इससे अभिभूत है? और तीसरी और अंतिम बात कि क्या ममता जी की जो राज्य व्यवस्था चली उसकी वजह से कोई एंटी इनकम्बेंसी का भी उनको सामना करना पड़ता है? आप चर्चा की शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए कृपया विस्तार से बताएं तो आगे की चर्चा के लिए एक समा बंधेगा. यही अपेक्षा के साथ ओवर टू यू. बहुत बहुत धन्यवाद आपको बैस साहब. आपको मैं बहुत पहले से जानता हूं और दिल्ली में शायद मिला भी हूं. लेकिन मैं बस जो बात से शुरुआत हुई बंगाल का जो चर्चा, सबसे बड़ी बात जो है, देखिए अब 2021 साल में 5 प्रदेश में चुनाव होने वाला है. बंगाल के साथ असम, केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी. लेकिन देखिए सबसे ज्यादा चर्चा देश भर में राष्ट्रीय स्तर पे कि गुजरात तक पहुंच गया है. एक तो कारण तो है कि बार बार गुजरात का जिक्र होता है बंगाल का चुनाव में, तो ये जो चर्चा में आ गया है बंगाल का चुनाव बहुत पहले से, चुनाव अभी भी देर है, अप्रैल मई में होने की संभावना है, पता नहीं पहले होगा कि नहीं, लेकिन इसके पहले, इतना पहले से इसके बारे में चर्चा हो रहा है. बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जा रहा है, गृह मंत्री जा रहा है, प्रधानमंत्री की सरकारी प्रोग्राम के नाते गया है और भी जाने वाला है 23 तारीख को. तो इसलिए
एक चर्चा का विषय बन गया कि सबसे पहली बात तो ये बताओ, बंगाल का विधानसभा जितना चुनाव हुआ, कभी भी उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का चर्चा ही हुई नहीं थी, क्योंकि ऑलमोस्ट नॉन प्लेयर रहे थे। ये सबसे बड़ी बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी लेके बंगाल चुनाव लेके चर्चा हो रहा है कि बंगाल में क्या भाजपा अब ममता को हटा के अपना क्षमता को अधिकार ले पाएंगे कि नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। मैं इसलिए बोलता हूं कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी का कम से कम एक नैतिक विजय तो हुआ है कि जो ट्रेडिशनल पार्टी रहे बंगाल का, कांग्रेस और वामपंथी दल, उसको दरकिनार करके आज वो उभर के आए हैं और सीधा मुकाबला कर रहा है सत्ताधारी बहुत ही ताकतवर तृणमूल कांग्रेस से। आपको पता ही होगा तृणमूल कांग्रेस का लीडर ममता बनर्जी एक सड़क से उठ के आए हैं लीडर, संग्राम संघर्ष बहुत जीवन है, वो इतना आसानी से उसके साथ मुकाबला करना संभव नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से ये तय किया कि 2014 के चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी जी सत्ता में आए और अमित भाई शाह ने उसका जो स्ट्रैटेजिस्ट रूप में उभर के आए हैं, उन्होंने तय किया था राजनीतिक रूप से कि उत्तर पूर्वी भारत में जहां पे भारतीय जनता पार्टी का कभी प्रभाव नहीं था, उस जगह में कैसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव विस्तार करे। इसलिए सबसे बड़ी कामयाबी मिला असम में, उसके बाद त्रिपुरा, आज सारे उत्तर भारत का जितना राज्य है एक छोड़ के बाकी सब में भारतीय जनता पार्टी है। तो ओडिशा में कोशिश की लेकिन ओडिशा में हुआ नहीं, क्योंकि नवीन पटनायक एक बहुत जाने माने लोकप्रिय मुख्यमंत्री रहे। बात है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल में 2014 का चुनाव के बाद जो बीजेपी का सिर्फ 2 सांसद जीते थे, उसके बाद 2016 का विधानसभा चुनाव में भी भाजपा का जिक्र नहीं था। उसमें ये बात चल रहा है कि क्या कांग्रेस वामपंथी ममता को हटा के सत्ता में आ जाएंगे कि नहीं। उस टाइम भी देखा गया भाजपा को सिर्फ 3 विधानसभा सीट में जीत हासिल हुई थी। लेकिन अचानक सारे सीन बदल गया था जब 2019 का जो चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव, जिस चुनाव में कहीं किसी ने पहले से पता नहीं था, भाजपा दावा करते थे 20-22 सीट मिलेंगे, लेकिन बंगाल से जो जुड़े हुए लोग हैं जो जानते हैं, कभी नहीं ये उम्मीद किया कि भाजपा 18 लोकसभा सीट जीत के आएंगे, और वो भी ममता का गढ़ से। इसलिए सबसे पहली जो जीत हासिल हुआ 2000, उसी से भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा नेता, राष्ट्रीय नेता सबने एक रणनीति तय किया, शायद एक मौका आ रहा है कि भाजपा का कमल फूल, शायद तृणमूल का जिसको कहते हैं घास फूल, वो हटा के कमल फूल आ सकता है। तो इसलिए 2018-19 का जो लोकसभा चुनाव है, वो चुनाव का हिसाब देखेंगे तो उसमें भाजपा जो पहले विधानसभा में 10% वोट मिला, अचानक 30% वोट बढ़ के 40% हो गया है। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। और साथ देखिए तृणमूल कांग्रेस के साथ उसका डिफरेंस अब मार्जिन है से 3% का, तृणमूल को मिला 43 पॉइंट समथिंग। इसलिए भाजपा का विधानसभा का उसका अगर कन्वर्ट किया जाए 121 सीटों पे विधानसभा का सीट में भाजपा आगे है, जो बहुमत के लिए बहुत ही नजदीक, क्योंकि बहुमत के लिए चाहिए 147, 294 विधानसभा का सीट है। तो इसलिए जो 121 सीट में वो आगे है, तो क्यों नहीं इसको बढ़ाया जाए। लेकिन इसलिए जो देखा गया कि उत्तरी बंगाल में भाजपा का कामयाबी अच्छा मिला, दक्षिण बंगाल में उतना नहीं। दक्षिण बंगाल में तृणमूल का गढ़ अभी भी है, अभी भी पकड़ मजबूत है। इसीलिए भाजपा ने एक रणनीति अपनाया, जो तृणमूल से बहुत लोग नाराज है, जैसे खास तौर पे जैसे ममता बनर्जी उसका भतीजा अभिषेक बनर्जी को जैसे पार्टी के कमान संभालने के दिया है, जो कमान पहले यही शुभेंदु अधिकारी देखते थे। इसीलिए इन लोगों को लगा कि ये पार्टी के जो उनका जो स्थान मिलना था नहीं मिल। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। साथ साथ जो विधानसभा क्षेत्र में जो तृणमूल का विधायक भाजपा का जो रिजल्ट आया, उसी रिजल्ट से कम 10,000 से 50,000 से पीछे जा रहा है, वो मेकअप करना डिफिकल्ट है। इसीलिए उस जगह के लिए भाजपा का आप देखिए जितना लोग ज्वाइन कर रहे हैं भाजपा में, शुभेंदु अधिकारी जीता हुआ एमएलए था, लेकिन शुभेंदु अधिकारी का जो एरिया है पूर्वी मिदनापुर, वहां पे भी भाजपा लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा फल किया है। देखिए खड़गपुर से तो मिदनापुर से दिलीप घोष जो राज्य का अध्यक्ष है, वो खुद जीत के आए थे।
और साथ साथ बाकी जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है उसमें भाजपा का पकड़ बढ़ा है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा मानना पड़ेगा कि बंगाल में 27% ऑफिशियली सरकारी तौर पे सेंसस के हिसाब से मुस्लिम आबादी है, बहुत बड़ा आबादी है। कोई बोलते हैं कि वो 30% हो गया कि और भी बढ़ गया। ये शिकायत भी है कि बहुत सारा लोग बाहर से आए हैं, उनको वहां पे वोटर बनाया गया है। जो भी है, लेकिन ये 70-80 सीट जो है, इस सीट में ये माइनॉरिटी एक अहम निर्णायक भूमिका लेते हैं। तो इस सीट में लड़ाई करने के लिए भाजपा का दूसरा रणनीति अपनाना पड़ेगा। इसलिए वो ज्यादा तौर पे ध्यान दे रहा है जो हिंदू बहुल आदिवासी एरिया है, जिसको जंगल महल बोलते हैं, उसके साथ साथ जो नॉर्थ बंगाल है और तृणमूल का पकड़ दक्षिण बंगाल में जहां जहां है, उस जगह से अगर उनका गढ़ को ध्वस्त कर सकते हैं तो एक संभावना बनती है। फिर भी मैं मानता हूं आज का दिन में लड़ाई अभी कांटे का टक्कर है। कोई घोषणा नहीं, भविष्यवाणी मैं नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अभी भी चुनाव बहुत देर है और भी बहुत सारे सीट बदल सकता है, बहुत सारे लीड छोड़ के आ सकता है भाजपा में। कौन कौन कैसे किस तरह से नेता आते हैं वो देखने की लिए जरूरत है। और एक बड़ी बात है, भाजपा का जो 40% वोट मिला, इसका श्रेय जाता है सिर्फ वामपंथियों का और कांग्रेस का, दोनों का मिल के करीब 30% वोट था। हाँ भाई, आ सामने ये ये वोट का अब 20 से 22% वोट भाजपा में ट्रांसफर हो चुका था। ट्रांसफर हुआ था, अचानक कोई डिसीजन नहीं था कि ट्रांसफर करो, क्योंकि लोग जो चाहते हैं ममता को हटाना, वो देखा कि कांग्रेस और सीपीएम से यह होगा नहीं। इसलिए जो होता है, केंद्र का एक बहुत बड़ा ताकतवर पार्टी, बहुत बड़ा पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा पार्टी, तो इसके साथ क्यों ना जोड़ जाए ताकि हम ममता को हटा सकते हैं। वो जो 40%, उसके साथ अगर 3-4% भाजपा बढ़ा सकते हैं तो निश्चित तौर पे ममता को बंगाल के मुख्यमंत्री रहने के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। इसलिए तो मैं शुरुआत के बाद ये मैंने एक पर्सपेक्टिव आपको बताया। इसलिए और एक सवाल आपने, मैंने जो समझ लिया कि आपने उठाया था कि क्या असादुद्दीन ओवैसी कुछ कर पाएगा कि नहीं। देखिए, असादुद्दीन ओवैसी बहुत जगह पे कामयाब हुआ है, खास तौर पे जो सो कॉल्ड सेकुलर फ्रंट का वोट ने उन्होंने डिवाइड किया है, उसको सीधा फायदा भाजपा को मिला है। भाजपा उसको डायरेक्टली उसको प्रोत्साहित करते हैं ऐसे नहीं है, लेकिन जैसे जैसे भाजपा का हिंदुत्व राजनीति आगे बढ़ रहा है, हिंदू कंसोलिडेशन होता है, स्वाभाविक रूप से एक मुस्लिम आइडेंटिटी, मुस्लिम कंसोलिडेशन भी होने का संभावना दिखाई दिया है। लोग सोच रहे हैं कि ये सब जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टी है, उनका जो स्वार्थ है वो देख नहीं पा रहा है, इसलिए उनका एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स भी उभर के आए हैं। लेकिन बिहार में और उत्तर प्रदेश या महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में तो अभी तक वो कामयाब नहीं हुआ है, लेकिन जो महाराष्ट्र और बिहार में खास तौर पे जो कामयाब उनकी मिली है, उसका एक बड़ा कारण है हिंदी और उर्दूभाषी मुस्लिम बहुत ज्यादा संख्या में है। लेकिन बंगाल में जो है बंगाली मुस्लिम, उसके साथ ये कल्चरल डिफरेंस है उर्दूभाषी और हिंदी भाषी मुस्लिम में। लेकिन कलकत्ता और आसपास एरिया में उर्दूभाषी मुस्लिम है, ममता का कैबिनेट में उर्दूभाषी मुस्लिम ही है, बंगाली मुस्लिम है नहीं। तो इसलिए बंगाली मुस्लिम है कांग्रेस के साथ। जैसे मालदा, मुर्शिदाबाद जो अधीर चौधरी का गढ़ माना जा रहा है, 60% मुस्लिम वोटर है। तो इसलिए इस जगह का जो बंगाली मुस्लिम है, उसका कल्चर हिंदुओं से ज्यादा अलग नहीं है। वो भी धोती कुर्ता ही पहनते हैं, वो टोपी वाला मुस्लिम नहीं है। उनका महिला, घर का महिला हिजाब नहीं पहनते हैं, जो कलकत्ता में उर्दूभाषी मुस्लिम को दिखाई देता है। इसलिए असादुद्दीन कितना कामयाब होगा, ये अर्ली, अभी बहुत ही अर्ली है। कारण यह है कि असादुद्दीन ओवैसी ने जो पार्टी बनाया था, वो पूरा पार्टी ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो चुका है। फिलहाल एक भी नेता उसके साथ नहीं है। एक भले ही एक पीर के साथ जो मीटिंग हुई थी असादुद्दीन ओवैसी के, बहुत तो जाने माने पीर है, उसको लोग मानते हैं, मुस्लिम जनता में उसका प्रभाव ज्यादा है। उसके साथ मीटिंग, वो अभी खुद कुछ बताया नहीं, लेकिन उनका जो पार्टी जो बनाया था, वो पार्टी तृणमूल में शामिल हो चुका है। इसलिए फिर से नया कोशिश करना पड़ेगा फिर। तो ये एक देखने वाली इंटरेस्टिंग चीज है। और दूसरा एक चीज ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है, मैं बोलना चाहता हूँ एक सेकंड के लिए,
कि नॉर्थ बंगाल में जो गोरखा थे, वो गोरखा अभी भाजपा छोड़ के तृणमूल के साथ आए हैं। बिमल गुरुंग वो कम से कम 10 से 15 सीट में प्रभाव डालते हैं। उन्होंने घोषणा की कि वो ममता बनर्जी के साथ रहेंगे, तो इसका असर भाजपा का नुकसान होगा कि नहीं, ये भी एक देखने वाली चीज है। कुल मिला के जो है, मैं जो पहले शुरू किया उसी से ही मैं कहूंगा, फिलहाल आज तक भारतीय जनता पार्टी जो एक चर्चा में है बंगाल में, ये उनका सबसे बड़ा नैतिक विजय है, और इसका श्रेय डेफिनेटली नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जाता है। धन्यवाद, आपने काफी अच्छा इस का जो शुरुआत करवा दी, हमें एक ओवरव्यू मिल गया पूरा कि क्या है, कहाँ किस तरह पूरा परिस्थिति किस ओर जा रही है, और कौन कौन से परिबल है जो आने वाले समय में असरकारक होंगे, और जिसकी वजह से या तो तृणमूल या भारतीय जनता पार्टी दो में से एक को या फायदा या नुकसान हो सकता है। तो मैं लेरी साहब आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और मुझे लगता है कि आपने आज का जो पूरा चर्चा है, वो चर्चा का थीम प्रेजेंटेशन, जिसको कीनोट एड्रेस अगर आप कोई सेमिनार होता तो बोलते, उसी तरह आपने उसको प्रस्तुत किया है। हाँ, मुझे याद है हम मिल चुके हैं, दिल्ली में मिले हैं, और वो those pleasant memories of meeting with you still linger on my mind. So it's a pleasure to welcome you in that capacity also once again. I'll come back to you. દર્શક મિત્રો, એ દરમિયાનમાં આપણે રોકાઈશું એક નાનકડા કમર્શિયલ બ્રેક માટે. નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, બંગાળની ચૂંટણીમાં શું થવા જઈ રહ્યું છે એની રસપ્રદ ચર્ચા માં એક આખો તબક્કો, એના વિશે આપણને બિલકુલ અધિકારપૂર્વક આ પૂરા મુદ્દા પર વાત કરી શકે તેવા શ્રીમાન ગૌતમ લાહિરી સાહેબે એક સરસ મજાનો ઓવરવ્યુ આપ્યો, આપણને સરસ મજાનો એક ચિતાર આપ્યો. હવે આપણે જઈશું હરિભાઈ દેસાઈ પાસે. હરિભાઈ, આપે સાંભળ્યું, યુ આપ ધ્યાનથી સાંભળતા હતા, હું જોતો હતો. શું લાગે છે આપને? હજુ વાર છે, આમ તો એપ્રિલ ને કઈ એ વચ્ચે તો ઘણા બધા પાણી વહી જશે, તો શું લાગે છે આપને? જયનારાયણભાઈ, મને લાગે છે ગૌતમ લાહિરીજીએ જે આખું આપણને ચિત્ર આપણી સામે મૂક્યું છે, દર્શકો સામે મૂક્યું છે, એને કારણે મારું કામ બહુ સરળ થઈ ગયું, સાચું કહું તો. પણ એમની એ વાત સાથે હું સંમત કે કીપ યોર ફિંગર ક્રોસ, કાલ ઉઠીને શું થશે. અત્યારે છે ને જે માહોલ આખો ઉભો કરવામાં આવ્યો છે, એ માહોલ આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસના નેતાઓને ત્યાં દરોડા ચાલુ છે આજે પણ. એટલે જે આ હથિયારો ચોફેરથી જે ઉપયોગમાં લઈ રહ્યા છે, એ મને લાગે છે કે કોલસાના ગોટાળા હોય કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટના દરોડા હોય કે આવકવેરાના દરોડા હોય કે અધિકારીઓની સામેના કેસીસ હોય, આ બધું ચાલી રહ્યું છે. યેન કેન પ્રકારેણ કોલકાતાના જે રાઇટર્સ બિલ્ડિંગ છે એની ઉપર ભગવો લહેરાવવો એ ભારતીય જનતા પાર્ટીની નેમ છે. અને મને લાગે છે કે એમણે એ સ્વપ્ન પૂરું કરવું છે, કારણ કે એમના માટે અનિવાર્ય છે. જો હિન્દુ મહાસભાના અધ્યક્ષ એનસી ચેટર્જી, અને એમના પુત્ર તો પાછા માર્ક્સવાદી હતા, સોમનાથ ચેટર્જી જે આપણા લોકસભાના સ્પીકર હતા. એટલે આમાં છે ને કોઈ રાજકીય પક્ષોનું અત્યારે જે પક્ષાંતર બધા ચાલી રહ્યા છે, તો મને એમાં બહુ આશ્ચર્ય નથી થતું. ડોક્ટર શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જીએ એમની કરિયરની શરૂઆત કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય તરીકે કરી હતી 1929માં. ડોક્ટર કેશવ બલિરામ હેડગેવાર એ ત્યાંની મેડિકલ કોલેજમાં ભણ્યા અને 1925માં એમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘની સ્થાપના કરી, ભારતીય જનતા પાર્ટીની માતૃ સંસ્થાની. એ કેશવ બલિરામ હેડગેવાર એ આજીવન કોંગ્રેસી રહ્યા, અને એમાંથી પછી ગુરુજીએ 1951માં જનસંઘની સ્થાપના તરફ
આખો પેલું થયું ને જનસંઘનો નવ અવતાર એટલે ભારતીય જનતા પાર્ટી આપણે કહી શકીએ. ભારતીય જનતા પાર્ટીના બે સ્વરૂપ હું તો જોઉં છું, એટલે કે અટલજીનો સમય હતો ત્યાં સુધીનું એક જુદું સ્વરૂપ હતું, નરેન્દ્ર મોદીજીનો જે સમય છે એ જુદું સ્વરૂપ છે. અને એ જોતા મને લાગે છે કે બંગાળ ઉપર ત્રાટકવું અને બંગાળની સત્તા રાઇટર્સ બિલ્ડિંગને કબજે કરવી, આ એમનો સંકલ્પ ઘણા વખતથી ચાલી રહ્યો છે. રાજભવન એમાં ભાગીદાર છે, કારણ કે રાજભવનના જેમ તથાગત રાય જે ધારો કે ગવર્નર હતા ત્યારે પણ જે પ્રકારે પોલિટિકલ ટ્વીટ કરતા હતા અને ત્યાં ઈશાન ભારતની અંદર પણ જે રીતે મદદ કરી રહ્યા હતા, મારા તો બહુ સારા મિત્ર પણ છે, તો એ આખી યોજનાબદ્ધ રીતે ચાલે છે. ગવર્નર હાઉસ એ કેન્દ્રના ગૃહમંત્રીની નીચે આવતું હોવાને કારણે રાજ્યપાલને જેનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય છે એ રીતે અહીંયા ધનખડનો પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, એ બહુ સ્પષ્ટ છે. લાહિરીજીએ મને લાગે છે ગોરખા નેતાની બિમલની વાત કરી, તો એ બિમલે જ્યારે આ ઘોષણા કરી એ પ્રગટ થયા ઘણા વખત પછી સોલ્ટ લેક પર, અને એમણે જાહેરાત કરી કે તૃણમૂલની સાથે રહેશે, દીદીની સાથે રહેશે, ત્યારે ધનખડે છે ને ત્યાં દાર્જિલિંગ જવાનું નક્કી કર્યું. એટલે મને લાગે છે કે જે ગરિમા રહેતી હતી રાજભવનની, એ આખી સક્રિય રાજકારણની અંદર રાજભવનનો પણ ઉપયોગ થઈ રહ્યો છે, એ બહુ સ્પષ્ટ છે. મમતા બેનર્જીની સરકારને બરખાસ્ત કરીને ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાદવાની એમની નેમ એ ઘણા વખતથી ચમકારા મારે છે, પણ હું માનું છું કે કેન્દ્રીય કેબિનેટમાં હજુ એ વિશેના મતભેદો સ્પષ્ટ છે, અને એને કારણે જો એ કરે તો દીદીને સિમ્પથી મળે કે કેમ એવી પણ એક ચર્ચાને કારણે એ મને લાગે છે સંકોચ અનુભવે છે. બીજું, આખી જે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ છે એને હિંસક પાર્ટી તરીકે પ્રોજેક્ટ કરવાની આખી દેશના મીડિયાની અંદર, પણ એ ત્યાંની બંગાળની અંદર શું પરિસ્થિતિ છે, મને એમ લાગે છે કે ત્યાં રવિન્દ્રનાથ ઠાકુરનો ઉપયોગ, એમના રાષ્ટ્રવાદનો ઉપયોગ અને શાંતિનિકેતનમાં જન્મ્યા એની વાત કરવાનું. હવે શાંતિનિકેતનમાં જન્મ્યા નહોતા હકીકતમાં, પણ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાઓ જે ભાંગરા વાટી રહ્યા છે એ બધા મુદ્દાઓ લઈને આ લોકો તૃણમૂલ વાળા આમને બહારી લોકો કહે છે. બીજી વાત, બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો, આ દેશની અંદર બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો 2 કરોડ જેટલી સંખ્યામાં છે. પાર્લામેન્ટની અંદર જે રજૂઆત કરવામાં આવી છે, જે રિપોર્ટ મૂકવામાં આવ્યો છે એની અંદર, અને 2014ના ઇલેક્શનના કેમ્પેઇન વખતે માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી એ ઉછળીને કહેતા હતા કે અમે બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરોને ખડિયા પોટલા બાંધીને ભગાડી દઈશું, 16મી મે થી અમે આ કરીશું. આજ દિવસ સુધી સત્તાવાર આંકડો જે છે, જે સંસદમાં મુકાયો છે, 5000 10,000 થી વધારે નથી. 2 કરોડ બાંગ્લાદેશીઓ આ દેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે રહી રહ્યા છે. એટલે વાતોના વડા કરવા એ બહુ જ સ્પષ્ટ છે. બીજી વાત એ છે કે મુસ્લિમ, જેમ મને લાગે લાહિરીજીએ બહુ સારી રીતે ઓવૈસીની વાત કરી, અને મેં પણ જોયું કે આજે પણ ઘણા બધા ઓર્ગેનાઇઝેશન્સની ત્યાં આગળ કલકત્તાની અંદર, કોલકાતામાં, હવે તો કોલકાતા કહીએ આપણે, એમાં જે બેઠકો મળી છે અને મુસ્લિમ મૌલાનાઓ ને બધા છે ને એ તૃણમૂલની સાથે જોડાયા છે, આદિવાસીઓ તૃણમૂલની સાથે છે, ગોરખાઓ તૃણમૂલની સાથે છે. આવા સંજોગોની અંદર ભારતીય જનતા પાર્ટી આક્રમક રીતે ડિફેક્શન કરાવીને તૃણમૂલના નેતાઓને પોતાની સાથે જોડવા માંગે છે, અને છતાં કોંગ્રેસ અને માર્ક્સવાદીઓ એ પાછો અલગ ચોકો કરી રહ્યા છે. એટલે એ ખરા અર્થમાં તો છે ને એમણે વેરની વસૂલાત કરવી છે મમતાની સાથે, અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને એ લોકો પણ છે ને ઘણો ટેકો કરી રહ્યા છે એવું મને લાગે છે. પણ મને લાગે છે કે અધીર રંજન ચૌધરીએ જે કહેલું કે અલ્ટિમેટલી મમતા વિલ હેવ ટુ સરેન્ડર અસ, શી વિલ હેવ ટુ કમ બેક ટુ અસ. મને લાગે છે અધીર રંજન ચૌધરીને બહુ ગંભીરતાથી લેવાની જરૂર નથી, કારણ કે ભાંગરા વાટનારા માણસ છે અને સંસદમાં પણ એવા ભાંગરા ઘણા બધા વાટે છે. પણ કોંગ્રેસ અને માર્ક્સવાદીઓનું ગઠબંધન પહેલાથી રહ્યું છે એવું છે, ને મમતા દીદી જે હંમેશા કહેતા હતા એ આપણને અત્યારે પુરવાર થઈ રહ્યું છે. 1977 થી માંડીને 1977 થી માંડીને 2011 સુધી ત્યાં માર્ક્સવાદી મોરચાની સરકાર રહી અને દીદીએ એમને પરાસ્ત કર્યા.
એના પછી બીજી વાર તો વધારે બહુમતી સાથે એ આવ્યા. હવે આ વખતે એમની અગ્નિ પરીક્ષા છે. અને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ ધારો કે અત્યારે એની 16 બેઠકો હું માનું છું ત્યાં સુધી વિધાનસભામાં એની પોતાની 16 બેઠકો છે, બાકીના 10 જેટલાને ડિફેક્શન કરાવીને લાવ્યા છે. 18 જેટલા મેમ્બર ઓફ પાર્લામેન્ટ છે. મને લાગે લાયરીજીએ એની વાત કરી છે, પણ હજુ એ સત્તાથી ઘણા દૂર છે. અને દીદી એ કંઈ ગાંજા જાય એવા નથી. આમે અટલજીની સરકારમાં પણ દીદી હતા અને કોંગ્રેસ લેડ સરકારમાં પણ દીદી હતા. એટલે દીદી છે ને એ ક્યારે વિપરે એ કંઈ કહેવાય નહીં. પણ આ તબક્કે મને પ્રણવદાની એક વાત બહુ સ્પષ્ટ કરવાનું મન થાય છે. પ્રણવદાએ એમના પુસ્તકમાં લખ્યું છે કે આ ગાંડા ગેલા કરનારી લાગે એવી મમતા બેનર્જી એ વાસ્તવમાં એ જે કંઈ બોલે છે, જે કંઈ કરે છે, એ એના દૂરગામી પરિણામો શું હોઈ શકે એનો બરાબર વિચાર કરીને એ કરે છે. એટલે વી કેન નોટ અંડર એસ્ટિમેટ મમતા દીદી. ઓફકોર્સ ભારતીય જનતા પાર્ટીની પાસે બહુ જ સારા નેતા કહી શકાય એવા નરેન્દ્ર મોદીજી છે, વડાપ્રધાન છે, અને એની આખી ફોજ છે કાર્યકર્તાઓની. એની સામે દીદીનો કેટલો ગજ વાગશે એ વિશે મને ખરેખર તો આ વખતે શંકા છે. એટલે આપ એવું કહેવા માંગો છો કે અત્યારે જો આપને પૂછવામાં આવે તો આપ એમ કહેશો કે જે ડાઇસ ઇઝ કાસ્ટ ઇન ફેવર ઓફ ભારતીય જનતા પાર્ટી? મને એવું લાગે છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે કે પ્રકારે રાઇટર્સ બિલ્ડિંગ પર પોતાનો કબજો જમાવશે. આવું મને અત્યારના સંજોગોમાં લાગે છે. ઓફકોર્સ હજુ તો 2-3 મહિના તો દૂર છે, છતાં ठीक है. दिनेश जी, आपने दोनों हमारे लर्नेड पैनलिस्ट को सुना. लाहिरी जी की बात जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं नहीं थे वहां से आज भारतीय जनता पार्टी कम से कम कंपटीशन में तो आ गई है. तो सबसे बड़ी अगर इनकी प्राप्ति है तो ये है कि कहीं नाम नहीं था, वहां से आज आप बिल्कुल कंपटीटर बन के उभरे हुए हैं और एक संभावनाएं भी उभर रही है कि आप शायद ममता बनर्जी को परास्त करके राइटर बिल्डिंग पे अपना झंडा गाड़ दे. क्या मानना है आपका? आपकी क्या राय है? आप भी बहुत करीब से देखते हैं इन सब बातों को. नमस्कार आदरणीय व्यास जी. और दादा लाहिरी साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया है और देसाई साहब ने बहुत कुछ कहा है. आपका प्रश्न दोबारा से रिपीट करिए, मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था. व्यास जी जरा एक बार प्रश्न रिपीट कर. मैं ये कह रहा था कि आपने ये दोनों विद्वानों को सुना जी. एक बात जो लाहिरी साहब ने कही वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं थी, कहीं क्षितिज में भी नहीं दिखती थी. जी जी जी. वहां से जाके आज एक ऐसी परिस्थिति में आ गई है कि अब संभावनाएं बनने लगी है, वहां तक की चर्चाओं में कम से कम आ गई है. यही उसकी सबसे बड़ी सिद्धि है. तो क्या लगता है आपको आगे चल के, अभी तो अप्रैल दूर है, तो वहां तक की घटनाएं और भी ये पेंडुलम को स्विंग कर सकती है? क्या मानना है आपका? अगर बंगाल के दृश्य को देखें तो एक चीज बड़ी प्रमुखता से निकल कर आती है, वो ये है कि यहां पर बीजेपी का मुकाबला एक स्ट्रीट फाइटर से है. अब जो बिहार में मुकाबला था, एक नोविस थे, तेजस्वी थे, या उत्तर प्रदेश में जब उनका मुकाबला था योगी जी का, तो वहां भी देखा जाए तो खासतौर से योगी जी पिक्चर में नहीं थी लेकिन अल्टीमेटली वही बात में आए, लेकिन वहां पे अपोजिशन कमजोर था. बंगाल का जो पर्दा है वो अलग है. वहां पर आपका मुकाबला एक मंजे हुए स्ट्रीट फाइटर से है, जो अपनी मेहनत से स्ट्रीट फाइट करके इसने सीपीएम को वहां से कई दशकों के रूल के बाद बाहर निकाला है. ये शक्ति जो ममता दी की है उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते. ये बात दादा लाहिरी ने भी सही कही कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व बड़ा है और वो हिंदू मुस्लिम डिवाइड के द्वारा जो दूसरे प्रदेशों में करती है, ये यहां भी उसी के द्वारा वोट हासिल करने की कोशिश करेगी. और उसने लोकसभा इलेक्शन में 18 सीटें जीतने के बाद हासिल किया. पर हम एक बात को कभी ना भूलें कि भारत की यही प्रबुद्ध जनता लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में अलग अलग ढंग से वोटिंग करती है. लोकसभा चुनाव में उनको पता है कि हमारे सामने नरेंद्र मोदी जी को वोट करना है, वो प्रधानमंत्री होंगे. लेकिन जब आपका स्टेट इलेक्शंस होते हैं
तो उसमें ये जो खास तौर से प्रिंसिपल से नहीं चल पाता है, और हमने इसको बहुत सारे राज्यों में देखा है। खास तौर से पिछले इलेक्शन में उड़ीसा के अंदर हमको देखने को मिला, जहां पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ में थे, जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अपेक्षाकृत बेहतरीन सफलता मिली, लेकिन साथ ही साथ उन्हीं वोटर के सामने दूसरी मशीन भी थी, लेकिन वहां बटन उन्होंने नवीन पटनायक साहब का दबाया। ये भारत की प्रबुद्ध जनता की एक पहचान है। अभी भी कुछ ऐसा होगा जहां पे भारतीय जनता पार्टी अगर लोकसभा के वोट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही है विधानसभा के अंदर, वो इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा है। मुख्यमंत्री का चेहरे का नाम है ममता बनर्जी, लेकिन उनके सामने भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है जिसको वो प्रोजेक्ट कर सके। अब यहां पर एक और बात उठती है कि खासतौर से दार्जिलिंग एरिया से जो वहां पे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा था, वो टीएमसी के साथ में आया है। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी गए हैं, कुछ और लोग भी गए हैं, लेकिन कुछ लोगों के जाने से टीएमसी का एक जो बहुत बड़ा नेटवर्क है, वाइड नेटवर्क है, वो नेटवर्क जिसको ममता दी ने कई डेकेड से सींचा है, उसको नर्चर किया है, उसको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि किसी भी स्ट्रीट फाइटर का जो नेटवर्क होता है वो इतना जल्दी ग्राउंड पे नहीं टूटता है। हो सकता है थोड़ी सी दरारें आए। एक और बात जो महत्वपूर्ण यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि भारत के खासतौर से बंगाल से लगा हुआ बांग्लादेश है, और वहां से जो हमारे पास रिएक्शंस आती है थोड़ी अलग किस्म की है। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा बंगाल में जाके ये कहना कि बांग्लादेश से घुसपैठिए आते हैं, ये एक बहुत बड़ी इक्वेशन है। अगर वो एज ए भारतीय जनता पार्टी के चीफ होते थे पहले और तब ये बात कहते थे, तब उसका रिएक्शन अलग होता था, लेकिन यहां पे जो उन्होंने बात कही है वो होम मिनिस्टर होने की हैसियत से कही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बांग्लादेश के संबंध भारत के साथ पिछले 1-1.5 साल के अंदर बहुत तनाव भरे रहे। यहां तक कि बांग्लादेश की शेख हसीना ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने कई मंत्रियों के दौरे कैंसिल कर दिए, और कहीं ना कहीं वहां से जो एडवर्स रिएक्शन निकल के आ रही थी उसके लिए, जबकि भारत की जो राजदूत थी वहां पे ढाका में नहीं गई थी, उसको प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने मिलने का समय भी नहीं दिया था। तब हर्षवर्धन श्रृंगला फॉरेन सेक्रेटरी गए थे, उन्होंने मामला सुलझाया, और नरेंद्र मोदी जी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर फिर से अगर भारत के गृह मंत्री जाके घुसपैठियों की बात करेंगे और बांग्लादेश का मुद्दा वहां पर उठाएंगे, तो हम एक ट्रस्टेड एलाई जो हमारे पास है उसको भी गवा देंगे फिर से वापस से। जहां तक बंगाल की बात है, बंगाल इतना आसान जितना लग रहा है वो नहीं होगा। भले ही वहां पे कैलाश विजयवर्गीय जाएं, नड्डा साहब जाएं, अमित शाह जाएं, मुकाबला एक स्ट्रीट फाइटर से है, चाहे वो साउथ बंगाल में हो, चाहे नॉर्थ बंगाल में हो, चाहे वो अपना दार्जिलिंग एरिया में हो। कहीं ना कहीं जो मुस्लिम मतदाता है, मुझे अभी भी लगता है कि वो शायद कहीं ना कहीं ओवैसी की पार्टी को तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। हाँ, टीएमसी और कांग्रेस के बीच में अलग अलग कुछ ज्योग्राफिकल एरियाज में वो बट सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यही सोचना है कि सारे के सारे हिंदू मुस्लिम डिवाइड करके एक किस्म का पोलराइजेशन करके फिर से जीत हासिल की जाए। लेकिन शायद बंगाल का नेचर अलग है, प्रकृति अलग है। बंगाल की प्रकृति बहुत हद तक पंजाब से मिलती जुलती है। बंगाल इतने जल्दी किसी के काबू में नहीं आता है। ममता दी को, सीपीएम को उखाड़ने में कितने दशक लग गए, इतनी आसानी से वो भी नहीं गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी सोचती है कि शायद बंगाल प्लेटर पे मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि बंगाल को प्लेटर पे मिल सकता है। ऊपर से स्थितियां भले ही इनको अच्छी लगे, लेकिन शायद अंदर से स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए शायद इतनी अनुकूल ना हो पाए जितनी भारतीय जनता पार्टी समझ रही है। दूसरा एक विषय जोड़ना चाहूंगा, राष्ट्रवाद का। आप वहां पर जाके रविंद्रनाथ टैगोर जी के गुरुदेव के आश्रम में जाके राष्ट्रवाद की बात करते हैं, तो गुरुदेव हमेशा एक बात कहते थे कि मैं राष्ट्रवाद को देखा जाए तो मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन मानता हूं। वो हमेशा देश प्रेम को भी सेकेंडरी मानते थे, सत्य को ऊपर मानते थे। ये उनकी एक खास बात थी। वहां पे जाके राष्ट्रवाद की बात करना, देखा जाए तो शायद वो जो एक बंगाली भद्र लोग है, शायद उनके गले भी ना उतरे, क्योंकि उनको गुरुदेव बहुत प्रिय है। और गुरुदेव के धाम में जाके राष्ट्रवाद की बात करना थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि ये शायद वहां के लोगों को, कुछ लोगों को कन्विंस कर जाए, बट ओवरऑल लोगों को कन्विंस नहीं करेगी। मैं नहीं समझता कि किसी भी कारण से बीजेपी पेनिट्रेट करेगी, गहरा करेगी, लेकिन शायद इतना ना कर पाए कि वो वहां पर राइटर्स बिल्डिंग की वो ऑक्युपाई कर ले। लाहिरी साहब,
ये तीनों, अब आप तीनों के वक्तव्य आपके सामने है और इसको समराइज करते हुए मैं चाहूंगा कि आप इसके ऊपर कोई टिप्पणी करें। राइटर्स बिल्डिंग में नहीं है, वो हावड़ा में चले गए नवान्नो। अभी नवान्नो कब्जा करना है। राइटर्स बिल्डिंग तो ऑलमोस्ट एक म्यूजियम बनने जा रहा है जी। तो बाकी दूसरी बात जो है, मैं कुछ बात से सहमत हूँ बोरस से, लेकिन जो हकीकत है मैं ये नहीं मानता हूँ कि बंगाल में जो 18 सीट भाजपा को मिले थे उससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के कारण मिले थे। वो नहीं था, क्योंकि उसके साथ साथ ममता बनर्जी को जो पॉपुलैरिटी 10 साल पहले थे, 5 साल पहले थे, वो आज उतना नहीं है। 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी उसके खिलाफ जा रहा है, ये मानना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता कि बंगाल में ध्रुवीकरण हर इलेक्शन चुनाव में होता था, हिंदू मुस्लिम नहीं। वो है सत्ता का पक्ष और सत्ता का विपक्ष। विपक्ष को भले ही 30-40 सीट मिलता था, लेकिन वोट मिलता था 40%। तो बंगाल में 40% वोट आपको सत्ता में नहीं लेके आगे पे, जब तक उसको आप जिसको थ्रेशोल्ड मार्क बोलते हैं वो 44 के ऊपर होना चाहिए। ममता जी उसका नजदीक अभी भी लोकसभा हिसाब से है। दूसरी बात जो है कि जो सबसे बड़ा दिखाई दिया, जो ध्रुवीकरण की जो बात बोल रहे हैं बोरा साहब, उतना नहीं। इसलिए बोल बीजेपी तो कोशिश किया है, लेकिन सही चाहे वो हिंदुत्ववादी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं, वो तो बोलेंगे ही। लेकिन वहां का जो वामपंथी है, वामपंथी का कैडर है, कांग्रेस का कैडर है, वो तृणमूल से त्रस्त है। इसलिए वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी है जो ममता बनर्जी को हरा सकते हैं। इसलिए सीपीएम का लीडर का मुख में ये नारा सुनाई दिया था कि पहले राम बाद में बाम। ये बहुत सारे नेशनल डेली में भी छपा है। ये नहीं कि बहुत करीबी नेता, ये नीचे स्तर पे जो कैडर है वो मानते हैं कि ममता को हराना है। देखिए सीपीएम का जो घोषित नीति है आज, उसका जो महासचिव सीताराम येचुरी जाके जो कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो सबसे पहले तृणमूल को हराना है। तो ये जो अगर वो वोट, अगर तृणमूल कांग्रेस जो मानता हूं मैं एंटी बीजेपी वोट, जो अगर सीपीएम और कांग्रेस का जो गठबंधन होने वाला है उसमें जाता है, तो पहले एक थ्योरी था कि ये अगर वोट ले लेते हैं तो शायद एंटी ममता बात को काट देते, ममता को फायदा होता। लेकिन ये भी एक बात है कि एंटी बीजेपी लिबरल जो सो कॉल्ड सेकुलर वोट, इसमें अगर डिवाइड हुआ तो ममता के लिए एक मुश्किल है। तो इसलिए मुझे अभी जो स्थिति, अभी भी वामपंथी कांग्रेस बहुत ही दुर्बल है। मुझे लग रहा है कि जो बीजेपी को हराने के जो चाहते हैं वो सारे वोट ममता के पास ही जाएंगे। बाकी जो बात है, जो बहुत सारे मुद्दा उठा है, वहां पे जो स्थिति अभी है, वहां पे मूल मुद्दा है ममता बनर्जी का, जो भाजपा ने जो कर रहा है मैनिफेस्टो में जो बोलेंगे, वो है ममता बनर्जी का अपशासन उसको कहते हैं। जो और दूसरी बात है कि उसके साथ राजनीतिक हिंसा, वो बंगाल में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भले अपोजिशन का बहुत लोग मारे गए हैं, और भी हिंसा बढ़ेगा, और तृणमूल को भी लोग मरे हैं। ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक ही पार्टी का मर रहा है, बाकी पार्टियों का भी। जो हिंसा का जो एक सिलसिला बंगाल में है, चुनाव के दौरान दिखाई दिया, इसका एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा भी ये है। साथ साथ तो एंटी इनकम्बेंसी का बात मैंने पहले ही कहा, ये भी रहेगा। इसलिए अभी भारतीय जनता पार्टी, ममता बनर्जी ने शिकायत कर रहे कि बाहर का है, बहिरागत है, इसलिए कि बंगाली कल्चर को मानते नहीं है। लेकिन देखिए अभी नरेंद्र मोदी जी जो भाषण दिए, उन्होंने कहा कि सुनाया कि रविंद्रनाथ ठाकुर कैसे गुजरात में आए थे, अहमदाबाद में आए थे, और अहमदाबाद में उसका जो भाई जो पहले आईसीएस थे, उनका घर में रहे, वहां से बहुत सारे कविता लिखी है। तो ये जो गुजरात के साथ जो जोड़ना बंगाल को, ये एक बहुत बड़ा इच्छा, बहुत बड़ा टैक्टिकल पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के तौर किया है। कितना कामयाब होगा वो तो बात की बात है, लेकिन भाजपा कोशिश कर रही है। इसलिए अभी फिलहाल वो बांग्लादेश वाला इशू छोटे लीडर, मजली टाइप का लीडर बोलेंगे, लेकिन बड़े लीडर अभी वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट और एनआरसी के बाद बंगाल में नहीं हो रहा है। उसका बड़ी कारण यह है कि बाकी इतना बोलने का जरूरत नहीं है। जो असम में जो वो इशू था, बाकी हिंदी एरिया में जो इशू कामयाब हो सकता है, बंगाल में सीए एनआरसी शायद कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि बंगाल का
पार्टीशन का एक लिगेसी है, जिसमें बहुत सारे हिंदू भी आए हैं, बहुत सारे कॉलोनी में हिंदू आए हैं, जो आजकल बड़े बड़े वो कॉलोनी बन गया है। तो इसलिए सोच समझ के ही भारतीय जनता पार्टी ममता का जो मैल एडमिनिस्ट्रेशन और जो राजनीतिक हिंसा, तीसरी एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा, जिन्होंने बोहरा साहब ने कहा कि मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, लेकिन भाजपा ने उसको कन्वर्ट कर दिया ये बोल के कि बंगाल का शिकायत है कि केंद्र उसको देखता नहीं है, उसको सहायता करता नहीं है, तो क्यों नहीं बंगाल और केंद्र में एक ही सरकार हो, ताकि वो समस्या। वो मैंने देखा कि कुछ आम जनता भी ये बोल रहा है बंगाली चैनल में, क्यों नहीं एक सरकार बने। तो ये भी एक मुद्दा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि लड़ाई बहुत दिलचस्प है जी आसान तो नहीं होगा जी लेकिन कामयाब जो लड़ाई चल रहा है ये आमने सामने एकदम, आप इसको कांटे की टक्कर मान के चलिए। अगला दिन में शायद इसका आप क्लियर पिक्चर मिल सकते हैं। જી દર્શક મિત્રો, કોઈ મેચ જોવા આપણે જઈએ ને એક જ તરફી હોય તો જોવાની મજા ના આવે, કોણ જીતશે ખબર ના હોય, અને આ જીતે થોડી વાર પેલાનું પલ્લું ભારે થાય, થોડી વાર પેલાનું પલ્લું ભારે થાય તો જ એ મેચ જોવાનો રોમાંચ રહે. એમ આ આખી જે બંગાળની લડાઈ છે એ લડાઈ રોમાંચક રહેશે એ બાબતમાં કોઈ શંકા નથી, કારણ કે છેલ્લા ટિલ ધ લાસ્ટ બોલ ઇઝ બોલ્ડ you will not be able to judge the results of this contest. આવનાર સમયમાં એ થોડી વધારે સ્પષ્ટ બનશે, પણ છેલ્લા દિવસ સુધી એનો રોમાંચ અને એનું રહસ્ય એ તો અકબંધ જ રહેશે. એટલે ચૂંટણી પરિણામો સાંભળવા માટેની તમારી જે આતુરતા અને તમને જે રસ પડવો જોઈએ એ ઇટ ઇઝ એશ્યોર્ડ. તમને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મમતા બેનર્જી વચ્ચેની આ જંગમાં છેક છેલ્લી ઘડી સુધી, છેલ્લા બોલ સુધી તમારો રોમાંચ જળવાઈ રહેશે. પણ હરિભાઈ, મારે આપને એ પૂછવું છે, આપણા પ્રધાનમંત્રીજી તો દરેક જગ્યાએ he is a great sort of communicator who finds out the connect and then tries to build upon that. Here he has found out the connect that Rabindranath Tagore stayed at Avnindranath's place અને સાડી પહેરતા એમના ભાભી અહીંથી શીખ્યા છે. ઇટ હેઝ ક્રિએટેડ સમ સોર્ટ ઓફ એ કનેક્ટ, ડિસ્કનેક્ટ, મિસકનેક્ટ. શું કહેવું છે આપનું? નહીં, મને લાગે છે કે બંગાળી પ્રજા એ છે ને ભણેલી ગણેલી અને જાગૃત પ્રજા છે, એટલે આવી ઇમોશનલ બાબતોથી એ પ્રેરાય એવું નથી લાગતું મને. પણ મને લાગે છે લાહિરીજીએ જે કહ્યું એ કે પહેલા છે ને મમતાને પાડી દો, પછી બીજેપીને પાડો, પણ એમાં છે ને કોંગ્રેસ અને માર્ક્સવાદીઓ બંને થાપ ખાઈ જશે. એકવાર બીજેપીની સરકાર આવી ગઈ એટલે પછી જને એ માર્ક્સવાદી જે મોડેલ હતું કે જે સેક્રેટરી વુડ ડિસાઇડ ઇન એની વિલેજ ટુ એલોટ ધ ફંડ્સ, એ આખું મોડેલ છે ને એ ભારતીય જનતા પાર્ટી એ વખતે એનો અમલ કરશે. રામભાઉ માલગી પ્રબોધિનીએ બંગાળ વિશે જ્યારે રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો ત્યારે એ રિપોર્ટમાં આ બાબત બહુ સ્પષ્ટ હતી, અને એ માર્ક્સવાદીઓએ લાંબો સમય સુધી ત્યાં રાજ કર્યું એમાં પણ એ બાબત હતી. એટલે મને લાગે છે કે જો કોંગ્રેસ અને માર્ક્સવાદીઓ એ મમતાની વિરુદ્ધમાં જ કામ કરવાના હોય અને ભારતીય જનતા પાર્ટી અને મમતા બંનેને લડાવવાના હોય તો હું માનું છું કે ભારતીય जनता પાર્ટીનો હાથ ઉપર રહે એવી શક્યતા મને તો બહુ સ્પષ્ટપણે લાગે છે. જયનારાયણભાઈ, दिनेश जी, आप तो इन लोगों को काफी करीब से देखते रहते हैं, क्या कांग्रेस और ये वामपंथी दोनों के दिमाग में से कोई जो ग्रे मैटर जिसको बोलते हैं गायब है क्या? या तो फिर उनके लिए ममता द्वेष इतना प्रबल है कि जहां गुजराती में हमारे वहां एक पूरी स्टोरी है, उसमें तो नहीं जाऊंगा, काकू सेठ थी कांसकी करीने, जहां एक छोटी सी कंधी के लिए काकू शेठ नाम का व्यापारी सुल्तान को बुला के ले आया था और गुजरात में पराधीनता का पूरा सर्जन किया था. तो ये वामपंथी और कांग्रेसियों ने क्या अपनी जो भी है दिमाग वगैरह कहीं गिरवी रख दी है या गुम हो गई है, क्या है? ये तो कांग्रेस की और कम्युनिस्टों की खासतौर से ये तो डिक्लाइन की जो स्टोरी है वो अपने आप में एक हिस्टोरिक स्टोरी है, और उसको हम सभी लोग देखते आए हैं कि
किस ढंग से उन्होंने एक अपनी ईगो के चलते या अपने अहम के चलते उन्होंने अपने आप को बर्बाद किया है और सामने वाले को हमेशा नीचा देखते रहे। और अभी भी कई बार वो अधीर रंजन चौधरी भी ऐसे वाक्य बोल जाते हैं जहां पे प्रेम भाव कम झलकता है और दुश्मनी ज्यादा झलकती है। तो एक जो क्लैश और कॉन्फ्लिक्ट वाली भावना है वो कांग्रेस के अंदर से गई नहीं। और कांग्रेस की एक प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अपनी डिफीट से कुछ सीखती ही नहीं है, वो सीखना भी नहीं चाहती है, ना इंटेंट है ना कुछ और है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है, तो कांग्रेस एक मार्जिनल प्लेयर तो रहेगी क्योंकि उसका जो वोट बैंक है वो भी बड़ा सिंसियर वोट बैंक है, छोटा सा है भले, लेकिन अभी वो है तो सिंसियर है। ऐसे कुछ वोट बैंक जो कम्युनिस्टों का है वो भी थोड़ा सा सिंसियर है, लेकिन बाकी सब टूट टूट के जा रहा है, कांग्रेस का टूट टूट के जा रहा है। रही बात अब कि यहां पर बंगाल के जो फाइट है, जो कि 2020 का मैच भी हो सकता है, आखिर में जाके एक्साइटिंग मैच हो सकता है, लेकिन दोनों टीमें स्ट्रांग होकर उतर रही हैं और बीजेपी तो पूरी कोशिश कर रही है कि टॉपल कर दे और आखिरी ओवर के अंदर मैच जीत जाए। मगर एक ही शब्द में, आज की ऑस्ट्रेलिया की मैच की तरह ड्रॉ तो नहीं हो जाएगा ना? नहीं, ड्रॉ तो नहीं होगा, क्योंकि ड्रॉ हुआ तो फिर सामने एक पॉसिबिलिटी होती है कि फिर खींचातानी शुरू होगी, लेकिन उसके में जो टूटने वाला हिस्सा है वो फिर से कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि उन्हें टूटने की आदत पड़ चुकी है। धन्यवाद। तो वो फिर टूटेंगे। जी दर्शक मित्रों, बहु रसप्रद बात है, ઉત્તરાયણ જામવાની છે, એમાં કોઈ શંકા નહીં, મેચ બરાબર રમાશે। હવે આ કોંગ્રેસ અને વામપંથીઓ એમણે કેટલા હદે એમનું મગજ ભાડે આપ્યું છે અથવા છે નહીં, તેના ઉપર આ બધી આખી રમતના આઉટકમનો આધાર રહેશે। પણ જે દિનેશજીએ વાત કરી ને, એ નામ સમજવા જેવું છે, અધીર રંજન। એ હંમેશા અધીર જ હોય છે और अधीर होकर जो हमारा मनोरंजन करते हैं, इसीलिए इनको हम अधीर रंजन बोलते हैं। એટલે કોંગ્રેસમાં જ્યાં સુધી અધીર રંજન છે ત્યાં સુધી તો તમને આ મનોરંજન મળતું રહેશે, એમાં કોઈ શંકા દેખાતી નથી। આજે આપણે શરૂઆત કરી છે અને શરૂઆત એટલી સરસ થઈ છે, આપણને લાહિરી साहब से लेकर हरि देसाई साहब और दिनेश जी जैसे इस क्षेत्र के काफी हम कह सकते हैं कि विद्वान लोग हमारी पैनल पे प्राप्त हुए। આજની આખી ચર્ચાનું તારણ એ છે કે આ શરૂઆત છે, આજની તારીખે આંબે મોહર આવ્યો હોય ત્યારે કેરીની વખારનો હિસાબ ના થાય, એટલે આંબે મોહર આવવાની શરૂઆત થઈ છે। હવે એ કોનો જામશે, કોના આંબે કેરીઓ લાગશે, કોનો મોર ખરી જશે, કોના આંબાને વાવાઝોડું આવીને પાડી નાખશે, આ બધી બાબતો હજુ આપણે જોવાની બાકી છે। એટલે આંબે મોર અને કલાલે લેખા, એ આપણી ગુજરાતી કહેવત સાથે આપણે આ ચર્ચા પૂરી કરીશું। મળીએ કાલે બીજા એક વિષય સાથે। નીતિશ કુમારને બિહારમાં હવે કંઈક નવા જૂની કરવાનો અભરકો થયો એવું લાગે છે, એટલે બિહાર વિશે આપણે કાલે ચર્ચા કરીશું। મળીએ આવતીકાલે। બિહારની રાજનીતિ, બિહારમાં જે થઈ રહી છે પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ રહી છે તેના અંગેની વાત માટે ધન્યવાદ। शुभरात्रि। और लाहिरी साहब, वोरा जी और डॉक्टर हरि देसाई, आप तीनों महानुभावों का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। आपने हमारे साथ जुड़कर हमें उपकृत किया। शुभरात्रि, मिलते रहेंगे फिर से।